Hello everyone, today we are going to start your new chapter. Your chapter name is The Bear Story. So let's start. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. This lady had a pet bear she was very fond of. It had been found in the forest, half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. This was several years ago, and now it had grown up to a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. But he did not want to. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. The three shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. The three dogs loved to play all sorts of games with him, pull his ears and his stump of a tail, and tease him in every way, but he did not mind it in the least. ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि पहले, बहुत पहले की बात है, जब लेडी एक जंगल के बीच में रहती थी। बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, तो वहाँ पे एक बॉर्डर में उसे एक पेट मिला, बियर मिला, ठीक है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड हो चुकी, बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था, ठीक है। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट में वो उसे मिला था। हाफ डेड था, क्योंकि उसे क्या था, भूख की वजह से वो हेल्पलेस था। किसी तरीके से जो लेडी है और जो कुक है वो उसे बचाते हैं, उसे अपने घर में लेके आते हैं। एंड दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो, ये बहुत पुरानी बात है। एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप अ बिग बियर, अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो एक बड़े से गाय को भी क्या है, काट सकता है या मार सकता है, ठीक है, अपने सिर्फ टू पॉज से। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही फ्रेंडली बियर है। उसका कोई वो सिर्फ पूरे दिन भर बैठा रहता है और गोट्स को, कैटल को देखता रहता है, ग्रेजिंग मतलब चरते हुए, ठीक है, घास खाते हुए। And the three shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो तीन डॉग्स हैं वो भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती में खेलते हैं, और इससे वो कभी भी इरिटेट नहीं होता। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी मीट नहीं खाया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, ब्रेड, पॉरेजी, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, ठीक है, वो सारी वेजिटेबल्स रिलेटेड या वेजिटेरियंस चीज़ें खाता था। ही हैड अ फाइन एपेटाइट एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल्स। बियर आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव अ चांस एंड फ्रूट्स इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट। जो उसका फ्रेंड था कुक, वो उसके खाने पीने का ध्यान रखता था, ठीक है, और उसे भी पता था कि जो बियर्स होते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं और उन्हें फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है। इन द ऑटम ही यूज्ड टू सेट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द ripening apples in the orchard, and in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. तो ऑटम की सीज़न में जो बहुत ही ज़्यादा जूसी एप्पल्स लगे होते थे, तो वो उनको घूरता रहता था, और जब उससे खुद कंट्रोल नहीं होता था तो वो पेड़ पे चढ़ के उनको तोड़ना शुरू कर देता था। Bears look clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game. बियर्स दिखने में बहुत लेज़ी होते हैं, लेकिन खाने की बात जहाँ पे आती है तो बहुत फुर्ती दिखाते हैं, इवन कि वो स्कूल बॉय को भी क्या है, पीछे छोड़ देते हैं। Now he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apple that fell to the ground. There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. Otherwise he was never put on the chain except for the night, and quite rightly so, for a bear, like a dog, is apt to get somewhat ill tempered if kept on the chain, and no wonder, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको पनिशमेंट भी मिली, क्योंकि वो बिना पूछे ही या बिना उसको परमिशन के वो एप्पल्स खा लेता था। और ऐसे ही हाल उसका बी हाइव्स, मतलब कि जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी था। उसके लिए भी उसे पनिशमेंट मिली थी, उसे 2 दिन तक चेन में बांध के रखा गया, क्योंकि उसे चेन में बंधे रहना बिल्कुल पसंद नहीं था।
ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज। तो पहले तो जब कोई पनिशमेंट करता था तब उसे चेन में रखा जाता था, और दूसरी बार रखा जाता था संडेज में। व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विथ हर मैरिड सिस्टर हु लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। जबकि उसकी जो ओनर थी वो अपनी जो मैरिड सिस्टर है उससे मिलने के लिए उसके माउंटेन से, मतलब फॉरेस्ट के एकदम एंड में रहती थी, उसके लिए मिलने के लिए जब जाती थी तब भी जो बियर है वो घर पे चेन में बंधा रहता था। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट विथ ऑल इट्स टेम्पटेशन. इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड. He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat, and he and his mistress had to swim to the shore. Now he knew quite well what is meant when his mistress put him on the chain on Sundays, with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return. If he had been good during her absence, he was sorry but resigned, like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. ठीक है. एंड क्या था, दैट इज़ क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड हो जाता था चीज़ों को देख के, इसलिए भी वो उसको लेके नहीं जाती थी, क्योंकि अगर एक बार वो जब लेके गई थी बियर को अपने साथ, तो उन्हें एक नदी पार करनी होती थी, और वो बोट में इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने बोट ही पलट दी, और ओनर को और बियर को वहाँ पे से तैर के आना पड़ा. इसलिए क्या है, वो संडे को उसको चेन में बांध की जाती थी एंड उसके सर पे हल्का सा टैप करती थी, मतलब कि उसे वापस आने के बाद, ओनर के वापस आने के बाद उसे एप्पल ज़रूर मिलेगा. One Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. In a minute he had joined her, panting and sniffing to take up his usual place, dog fashion, at her heels. The lady was very angry. और ऐसे ही एक संडे के दिन जब उसने अपने बियर को बांधा चेन पे और खुद हाफ वे फॉरेस्ट के आधे रास्ते तक पहुंच गई थी, अचानक से उसने पीछे से आवाज़ सुनी, और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो जो बियर था वो उसके पीछे पीछे आ रहा था, और क्या था, वो हाफ रहा था क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से उसका पीछा कर रहा था. ली को ये देख के बहुत गुस्सा आया. शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच. देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम. शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विथ हर, एंड beside, it was very naughty of him to have disobeyed her. She told him in her serviced voice to go back at once. Menacing him with her parcel, he stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept on sniffing at her. When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parcel so hard that it broke in two. He stopped again, shook his head, and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. Then he returned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. ठीक है. तो जब वो उसको देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि इसको मैंने चेन पे बांधा था और ये दोबारा मेरे पीछा करते हुए मेरे पीछे तक फॉरेस्ट तक पहुंच गया है. ठीक है. क्योंकि वो लंच के लिए बहुत लेट हो चुकी थी, तो वो ना ही बियर को अपने साथ ले जाना चाहती थी और ना ही उसको वापस अपने घर ले जाके चेन में बांधना चाहती थी. ठीक है. तो उसने क्या किया, उसने पहले तो अपने वॉइस से, गुस्से की वॉइस से बियर को डराया कि जाओ घर वापस जाओ. ठीक है. लेकिन तब भी वो नहीं माना, वो वहीं पे खड़ा रहा. और फिर दूसरी बार क्या करा उसने, जो उसके पास छाता था, ठीक है, पैरसॉल मतलब एक तरीके का छाता, उससे उसको मारना शुरू कर दिया, मतलब हल्का सा पुश करना शुरू कर दिया. और उसको ये देख के और गुस्सा आया कि उसने जो नया कॉलर था अपने गले का वो भी उसने खो दिया था. तो इसकी वजह से लेडी को और गुस्सा आया और उसने और ज़ोर से गुस्से से उसको पुश किया, जिसकी वजह से वो छाता भी क्या है, टूट चुका था. लेकिन किसी तरीके से कभी कभी जो बियर है वो इतना बड़ा मुंह खोल रहा था, काफ़ी टाइम उसने बड़ा मुंह खोला, तो जो लेडी है उसे लगा कि शायद ये कुछ कहना चाहता है, लेकिन क्या है, उसने उसे वापस जाने के लिए कह दिया. तो जो ये बियर है ये जब वापस जा रहा था तो बीच बीच में पीछे मुड़ के लेडी को देख रहा था. When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. लेकिन जब लेडी अपनी सिस्टर के घर से वापस आती है तो वैसे ही जो
बियर है वो कैनल के आउटसाइड, मतलब अपने जहाँ उसका सोने का रहता है वहाँ पे वो बैठी रहती है. And the lady was still very angry. She went up to him and began to scold him more severely and said he would have to be chained for 2 more days. और जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसने जाते समय उसे बहुत परेशान किया था. तो वो उसे कहती है कि इसे चेन में बांध के रखना 2 दिन और. The old cook who loved the beer as if he had been her son rushed out from the kitchen very angry. और जो कुक है जो कि उस बियर को बहुत पसंद करती थी, बहुत अपने बेटे जैसा समझती थी, वो गुस्से से किचन से आती है. वट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसूस, सेड द कुक. ही हैड बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, ब्लेस हिम. ही हैड बीन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेज एज मीक एज एन एंजल, लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक. ठीक है, तो वो वहाँ पे आके अपने मिस्ट्रेस को बोलती है कि मैम आप किस लिए डांट रही हैं इसको, ये तो पूरे दिन भर यहीं पे बैठा हुआ था, ये एकदम प्योर है जैसे कि गोल्ड होता है, और उसकी निगाहें सिर्फ गेट की तरफ थी कि कब तुम वापस आओगी. ठीक है, तो यहाँ पे लेडी को लास्ट में रियलाइज़ होता है कि जो बियर को वो फॉरेस्ट में भगा रही थी वो उसका बियर नहीं था बल्कि वो एक जंगली बियर था. ठीक है, तो इसको सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है. सो इट इज़ रिटन बाय एक्सेल मिंथे. ठीक है, if you have any doubt regarding this chapter you can freely ask me. Thank you everyone.